السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہونے والے حملے میں 4 دہشت گرد ہلاک جبکہ پولیس اہلکار سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ ملک میں ایک بار پھر دہشت گرد سر اٹھانے لگے۔ کراچی میں رینجرز پر حملوں کے بعد دہشت گردوں نے نئے مقام پر حملہ کر دیا۔ اس بار نشانہ بنایا گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج کو، جہاں اسلحے اور دستی بم سے لیس دہشت گردوں نے عمارت میں گھس کر فائرنگ کر دی۔ دہشت گردوں نے پہلے دستی بم پھینکے، پھر پارکنگ کے ذریعے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ دستی بم حملے کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے حال میں 2 افراد داخل ہو گئے تھے، تاہم ان کے بیگ میں موجود 2 دہشت گرد دروازے پر ہی مارے گئے۔ حملے میں 1 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی رینجرز حکام موقع پر پہنچے اور دہشت گردوں کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سندھ رینجرز نے تمام دہشت گردوں کو ہلاک اور سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن کے بعد سب حالات نارمل کر دیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار تجارتی لین دین میں مصروف ہیں، جبکہ ٹریڈنگ ایک لمحہ کے لیے بھی معطل نہیں ہوئی۔ شہید سب انسپکٹر محمد شاہد کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹر نمائندے عطا حسین سے جی عطا۔ جی بالکل، شہید سب انسپکٹر محمد شاہد کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں ادا کر دی گئی ہے۔ پولیس کے خصوصی دستے نے شہید کو سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ نماز جنازہ میں آئی جی سندھ، صوبائی وزیر تعلیم اور کراچی پولیس چیف سمیت رینجرز کے سینئر افسران اور شہید کے ورثاء اور اہل علاقہ بھی شریک ہوئے۔ آئی جی سندھ نے شہید پولیس افسر کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی شکریہ عطا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ کا انکشاف، کہا حملہ سلیپر سیل کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رینجر ہیڈ کوارٹرز میں ڈی جی سندھ رینجر میجر جنرل عمر احمد بخاری اور ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج حملے میں ہندوستانی ایجنسی را ملوث ہے۔ دہشت گردوں کو ہدف سے پہلے ہی 8 منٹ میں فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ 10:02 سے لے کے 10:10 تک یہ ٹوٹل 8 منٹ کی کارروائی تھی، جس کے اندر 4 دہشت گرد اور الحمدللہ وہاں پہ جو ایک سیکیورٹی آپریٹرز تھا، جس میں رینجرز، پولیس اور سیکیورٹی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے جو ادارے تھے، جو کہ ہماری کمبائنڈ ایک سیکیورٹی نیٹ ورک تھا، انہوں نے 8 منٹ میں ان 4 دہشت گردوں کو مارا۔ انہوں نے بتایا کہ رینجرز، پولیس اور پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز پر مشتمل سیکیورٹی ونگ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ 20 منٹ میں تمام کارروائی مکمل کر لی گئی تھی، جبکہ دہشت گردوں کا ارادہ لوگوں کو یرغمال بنانا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جدید اسلحہ، لانچر، گرنیڈ اور دیگر سامان لائے تھے۔ دہشت گردوں کا مقصد پاکستان کی خوشحالی کو نقصان پہنچانا تھا۔ پاکستان رینجر سندھ کی ریپڈ ایکشن فورس اور پولیس کی ریپڈ ایکشن فورس یہ دونوں موقع پہ پہنچی اور انہوں نے پوری بلڈنگ کو اگلے 25 منٹ کے اندر کلیئر کر دیا۔ یہ 4 دہشت گرد اس عزم کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر آئے تھے کہ وہ اس اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں اندر جائیں گے اور نہ صرف وائلنس کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، بلکہ ہوسٹیج بنانے کے بھی ارادہ رکھتے تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں، ہر ٹیررسٹ مکمل طور پر اسلحے سے لیس تھا، جس میں اس کے پاس AK-47 رائفلس تھیں، ایک کے پاس گرنیڈ لانچر تھا، بہت سے گرنیڈز تھے، ہینڈ گرنیڈز بھی تھے اور لانچر کے ساتھ جو گرنیڈ لگتے ہیں وہ بھی تھے، کھانے پینے کا سامان تھا اور بہت سا ایمونیشن تھا۔ میجر جنرل عمر بخاری کا کہنا تھا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے گمراہ لوگوں کو رائے راست پر لانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ دہشت گردی کی ایسی مزید کوئی ناپاک کوشش ہوئی تو ہم اس سے بھی بہتر طریقے سے جوابی کارروائی کریں گے۔ ملک میں دیر پا عام بڑی قربانیوں کی مرہون منت ممکن ہوا۔ بہادر قوم کے تعاون سے دہشت گردوں کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ سپہ سالار نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کا عزم دہرا دیا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई को सिपा सलार ने सराहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दुश्मन अमन को खराब करने की कोशिशों में नाकाम रहेगा। उन्होंने धरती माँ की हिफाजत का अज़म दोहराते हुए कहा, शुहदा की कुर्बानियों से हासिल अमन इस्तेहकाम को खराब नहीं होने दिया जाएगा। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क में देर पा अमन शुहदा की कुर्बानियों से आया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान कुर्बान करके दहशत गर्दों को अंदर दाखिल होने से रोका। आर्मी चीफ का कहना था कि रेंजर्स और पुलिस का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके मुख्तसर वक्त में दहशत गर्दों का खात्मा किया। कराची स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन सुलेमान मेहदी ने बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों समेत सिक्योरिटी एहलकारों को खराजे तहसीन पेश किया है। कहते हैं कि दहशतगर्दों के हमले के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 1 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद नहीं की गई, काम मामूल के मुताबिक होता रहा। 3 शहादतें हुई हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गए हैं हमारी कंपनी के जो यहाँ तैनात हैं, 1 सब इंस्पेक्टर है और कुछ जख्मी हुए हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड में ऑलरेडी हमने ये एक जिक्र कर दिया है हमारे ग्रुप में, और हम भी आउट ऑफ द वे जाएंगे इनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल वेलफेयर के लिए, और जिस तरह भी हम जो भी इनकी मदद कर सकेंगे वो बिल्कुल करेंगे। इनका एहसान है आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो इन्होंने अपनी आज जान का नजराना पेश करके इसको बचाया है। पाकिस्तान बहुत एक रेजिलियंट कौम है, और जैसा आपने देखा कि 1 मिनट के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग बंद नहीं की गई है, और इन्वेस्टर्स को जैसी सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, उसके बाद वर्क एज पर नॉर्मल पे जो है वो काम हुआ है। सारे ट्रैक होल्डर्स ने जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू रखी है, मैनेजमेंट टीम अपनी जगह पे मौजूद थी। तो इसको इस तरह ट्रीट बिल्कुल किया गया जैसे लाइफ वॉज एज पर नॉर्मल। ये टोटल 7 से 8 मिनट का टोटल आज ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज भी क्लियर था, लोग भी अपने अपने दफ्तरों में नॉर्मल हालात पे काम कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का हमला ईरान की जानिब से मुजम्मत की गई है। ईरानी सफीर कहते हैं कि हम स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मुजम्मत करते हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान दहशत गर्दों की बाक़ियात से निजात पाएगा। ऐसा कहना था सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का, और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मुजम्मत की है। आपको बता रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले पर मुजम्मत की गई है, और ईरानी सफीर का इस मौके पर कहना था कि हम स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मुजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दहशतगर्दों की बाक़ियात से जरूर निजात पाएगा। यूं तो अर्ज़े वतन पर मर मिटने के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सरबकफ है, लेकिन पुलिस एहलकारों ने जिस मुहारत और जवामर्दी से इनका मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। पाक सरजमीन को लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर हासिल किया, और अब इसकी आन बान शान की हिफाजत के लिए भी हर कदम हर शहरी अपनी जान नजराना करने के लिए हथेली पर लिए घूम रहा है। अफवाज पाकिस्तान हो, पुलिस या दीगर इदारे, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाला शहरी सब मादरे वतन की मोहब्बत से सरशार दिखाई देते हैं। कराची में कोरोना से नबर्द अजमा मुल्क की मईशत के हब पर वार करने वाले बुज़दिलों को अपने अंजाम तक पहुंचाने में जो किरदार पुलिस एहलकारों ने अदा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची के अमन के लिए यूं तो सैकड़ों पुलिस एहलकार शहीद हुए, लेकिन अब यही पुलिस एहलकार मुल्क की मईशत के सफर को जारी रखने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। पुलिस एहलकारों ने जिस जवामर्दी से सिर्फ 8 मिनट में रिस्पांस करते हुए दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाया, यकीनन एक काबिल जिक्र इकदाम है। इस कार्रवाई के बाद शहरी पुलिस एहलकारों को किसी हीरो की तरह एहतराम से देख रहे हैं, क्योंकि कराची के शहरियों को अब यकीन है कि ये सिपाही भी उनकी हिफाजत कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह का कहना है कि दहशतगर्दों ने पार्किंग एरिया से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। चंद दहशतगर्दों ने जो कि आम थे राशन कोफ और ऑटोमेटिक के साथ, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया।
वो पहले पार्किंग लॉट में आए और वहां से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उनका मुकाबला किया और जो ही पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश की वो मार दिया गया। लेकिन उसके बाद उसके साथी जो थे वो भी अंदर घुस आए और फायरिंग के तबादले में वो चारों दहशतगर्द जो है वो भी कैफे किरदार को पहुंच चुके हैं और चंद हमारे अफराद जिनकी तादाद सो फार 4 बताई जा रही है, वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के आदमी वो भी शहीद हुए हैं। इस वक्त रेंजर्स और अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पुलिस ने बिल्डिंग को मुहासरे में लिया हुआ है और उसकी क्लियरेंस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे, जैसे कि पहले लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ एनफोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है, इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ऑपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद हुकूमत ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर करा लिया। हुकूमत ने ऑपोजिशन की तमाम तजावीज रद्द कर दी। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि रिलीफ दिया है। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल का फैसला कुन राउंड स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की सरबराही में शुरू हुआ, जिसमें कौमी असेंबली के इजलास में वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। वोटिंग के दौरान हुकूमती अराकीन की बड़ी तादाद ने डेस्क बजाए और वजीर आजम के हक में नारे भी लगाए, जिसके जवाब में अपोजिशन की जानब से भी शदीद नारेबाजी की गई। शिकनौ की हमायत में 160 और इसकी मुखालफत में 119 वोट दिए गए थे। बजट मंजूर होने के बाद हुकूमती बेंचों पर मौजूद अराकीन ने मुबारक दी, जबकि अपोजिशन ने इसको मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने अपने पैगाम में कहा कि अपोजिशन कमजोर हो गई। पहले 29 वोटों से बरतरी थी, अब 41 वोटों से बरतरी हो गई। इजलास में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया, तो जवाब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने धुआंधार तकरीर की, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन को एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज दिया। मुशीर खजाना कौम के सामने टीवी पे बयान देता है कि जो पीआईए खरीदेगा स्टील मिल उसको मुफ्त में देंगे। ये इदारे छोड़ के गए थे। दूसरा सवाल हुआ स्पीकर साहब कि आप लोग सामना कैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया। 208 अरब का मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे। इजलास में खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी कदरे जज्बाती दिखाई दिए। उनका कहना था कि आप मुल्क लूटें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हम नोटिस लेना बंद कर दें। इमरान खान नोटिस लेने के लिए आया है, अवाम ने मैंडेट दिया। वजीर आजम किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं देंगे। तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे, नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। हुकूमत ने 12 जून को कौमी असेंबली में आइंदा माली साल के लिए बजट पेश किया था, जिसका हुजम 71 अरब 37 अरब रुपए है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में हुकूमती आमदनी का तखमीना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से महसूलात की सूरत में 4,963 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी की मद में 1,610 अरब रुपए रखा गया है, जबकि 3,437 अरब रुपए का खसारा है। पार्लियामेंट का बजट इजलास सियासत की नजर हो गया। हुकूमत की तरह अपोजिशन ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे का मुतालबा किया तो एहसन इकबाल ने मुल्क की बड़े खसारे का इल्जाम लगाया। स्पीकर असद कैसर की सरबराही में कौमी असेंबली के बजट इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने दहशतगर्दी को पाकिस्तान में फरोग दिया उसे यहाँ वजीर आजम ने शहीद कह दिया। अल्लाह हमें दहशतगर्दी और उसकी हिमायत करने वाले अजहान से भी महफूज रखे। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे कि फवाद चौधरी ने लुकमा दिया कि हमने बात की तो आपका सियालकोट जाना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं आपके मुतालिक बोला तो ऐवान में बैठना मुश्किल हो जाएगा, आप कानून को हाथ लगाएंगे। मैं ऐसी गल्लां कर रहा, खुदा दी किसी तो जगह नहीं लभनी है इस हाल दे विच।
मैं सही कह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ की बात पर फवाद चौधरी अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गलत बात की, माफी मांगे। नहीं देखिए, उन्होंने अपने हल्के के मसाइल पे देखिए प्लीज आप तशरीफ रखें। शाह साहब, माफी मांगे बगैर ऐवान की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजीर आजम मईशत की तबाही पर कौम से माफी मांगे या इस्तीफा दें। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है वजीर आजम के लिए दो ऑप्शन है। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि हमारे वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बोले अगर मौजूदा बजट में इस्लाहात ना की गई तो आइंदा साल 700 अरब तक का बजट खसारा हो सकता है और फिर ये पूरा नहीं होगा। उनका कहना था कि मुश्किल इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क के पास वजीर खजाना ही नहीं। जबकि पाकिस्तान इतने बदतरीन इक्तसादी बहरान से गुजर रहा है, इस हुकूमत के पास कोई वजीर खजाना नहीं जो यहाँ बजट पेश कर सके। हुकूमती बेंचों से वफाकी वजीर मुराद सईद ने जज्बाती तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अपोजिशन बेंचों से नारे लगाए गए और फिर अपोजिशन के अरकान ने वॉकआउट भी किया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इन एक्शन। सियासी रहनुमाओं से राबते और मुलाकातें। शाहजैन बुगटी के साथ होने वाली मुलाकात में कौमी मामलात पर मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतहरिक। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। बिलावल भुट्टो और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और कौमी मामलात पर मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। इस मौका पर शाहजैन बुगटी ने बलोचिस्तान के मसाइल पर आवाज उठाने और आगाज हकूक बलोचिस्तान का खुसूसी पैकेज देने पर पीपल्स पार्टी की क़ियादत को सराहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के मसाइल और हकूक की बात की है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के हकूक पर कोई समझौता नहीं होने देगी। सबको मिलकर हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाना होगी और आवाम की आवाज बनना होगा। लाहौर में आटे का बहरान जोर पकड़ गया है। आटे की किल्लत की वजह से शहरी परेशान हैं। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से तजावुज कर गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। लाहौर में रोज बरोज आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आटे की किल्लत की वजह से शहरी परेशान हैं। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से तजावज कर गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत जिस बुनियादी चीज का नोटिस लेती है वो आवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। लाहौर में आटे की चक्कियों पर आटा दस्तयाब है, लेकिन 65 रुपए फी किलोग्राम में शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। खरीदारों का कहना था कि अगर चक्कियों पर भी आटा न मिले तो वो तो आटे को तरस ही जाए। चक्कियों की वजह से पब्लिक को जो थोड़ा बहुत आटा मिल रहा है वो मिल रहा है, नहीं तो बाहर तो नायाब हो गया, आटा मिलता ही नहीं है। थोड़ा 1100-1200 रुपए का मिल रहा है 20 किलो का। आटा चक्की मालकान का कहना था कि उन्हें हुकूमत की जानिब से गंदुम पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती जो वो सस्ता फरोख्त करें। अभी तो फिलहाल आटे की चक्कियां ही आवाम में आटे की जरूरियात को पूरा कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि आटा सस्ता करे और ऊपर से महंगाई भी बहुत हो गई। आटा मार्केट से गायब हो गया। ये आटा मिलता नहीं पिया, चक्कियां खुलियां ने, चलो लैन आ जन्ने आ, नहीं तो सानू आटा कित्थे मिलता पिया वे। आटा तो वैसे मिल ही नहीं रहा। चक्कियों से दुकानों से अक्सर शार्ट ही रहता है, मसलन उसको पैसे दे के भी चीज नहीं मिलती। शहरियों का कहना है कि आवाम को बुनियादी अशिया फराहम करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। आटा एक बुनियादी चीज है, इसलिए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सस्ते आटे की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि उनकी जिंदगियों में सुकून आ सके। कैमरामैन निशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। हुकूमत भी सूबा पंजाब में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए सरगर्म है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात की और फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया। हुकूमत भी सूबा पंजाब में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए सरगर्म है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात की और फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया। अब्दुल अलीम खान का वफ्द से कहना था कि सिर्फ फंक्शनल फ्लोर मिल्स को गंदम देंगे। फहरिस्तों की तैयारी शुरू है। फंक्शनल फ्लोर मिल्स की तस्दीक के लिए खुफिया अदारों से भी मदद ले रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर आटे की कीमत कम से कम रखना चाहते हैं। अगले 3 माह में खुराक के शोबे में
में नई पॉलिसी ला रहे हैं। वजीर आजम का गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आटे की कीमत में आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। आटे के बुरहान पर काबू पाने के लिए गंदम की फ्लोर मिल्स को वक्त से पहले रिलीज का फैसला किया गया है। मुल्क में जितनी गंदम कम होगी उतनी मकदार दरामद कर ली जाएगी। आटे की टारगेटेड सब्सिडी पर भी काम हो रहा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने सूबे भर की तमाम मिल्स को यकसा गंदम रिलीज करने की तजवीज देते हुए कहा कि हुकूमत से ताउन करेंगे। सूबे भर में एक ही रेट हो सकता है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द में अब्दुल रऊफ मुख्तार, मियां रियाज अहमद, शौकत हयात और फरूख शहजाद भी इजलास में शरीक हुए। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो कोरोना के खिलाफ जंग में 30,000 से भी अमले की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। हेल्थ वर्कर्स के हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर वी केयर प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना से निपटने के लिए 30,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की तरबियत मुकम्मल। माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी हेल्थ वर्कर्स को PPEs के इस्तेमाल और हिफाजत के लिए 1 घंटा ऑनलाइन तरबियत दी जा रही है। वी केयर प्रोग्राम के तहत तरबियत के ख्वाहिशमंद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हेल्थ वर्कर्स वी केयर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से 3500 डॉक्टर्स और नर्सेज ने तरबियत मुकम्मल की है, जिनमें से खैबर पख्तूनख्वा से 9,700 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स, पंजाब के 6,500 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स, सिंध से 8,700, जबकि बलोचिस्तान से 1,600 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने तरबियत मुकम्मल कर ली है। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मारूफ ग्राफिक्स डिजाइनर अली इमरान जैदी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम सच टीवी के साथ बतौर क्रिएटिव हेड मुंसलिक रहे हैं। मरहूम अली इमरान जैदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री के साथ बतौर ग्राफिक डिजाइनर बड़े अरसे से मुंसलिक रहे और मुल्क के बड़े टीवी चैनल्स में अपनी खिदमात सरंजाम देते रहे। मरहूम सच टीवी के साथ भी बतौर क्रिएटिव हेड अपने फराइज सरंजाम देते रहे। मरहूम एक मिलनसार और खुश अखलाक तबीयत के हामिल इंसान थे। सच टीवी टीम और मैनेजमेंट अली इमरान जैदी की वफात पर मखमूम है और मरहूम की मगफरत के लिए दुआ को है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग 3 बड़े शहरों में डिसइंफेक्शन स्प्रे का फैसला कर लिया गया है। स्प्रे करने के लिए NDMA और निजी कंपनी के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुआहदा भी तय पा गया है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना वायरस का डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत NDMA डिसइंफेक्शन स्प्रे के लिए अवामी मकामात और इमारतों की निशानदही करेगा। कंपनी NDMA की बताई कि जगहों पर स्प्रे का तमाम बंदोबस्त करेगी। अस्पतालों और अवामी मराकज को स्प्रे के लिए तरजीह दी जाएगी। NDMA के मुताबिक मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक इजाफे के बाद स्प्रे का फैसला किया गया। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा और पेट्रोल कीमतें बढ़ते ही किरायों में फौरी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। कोरोना का सामना SOPs की खिलाफ वर्जियों से किया जाने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरी इक़्तिदार में अब तक 12,643 केसेस जबकि 127 अमवात हो चुकी हैं। इंतजामिया SOPs बनाकर अमल दरामद करवाना भूल गई। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किरायों के साथ गाड़ियां भरने में मसरूफ हैं, तो मुसाफिर कहते हैं टैक्सी के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते और जाना भी जरूरी है। कोई ट्रांसपोर्ट है, सुजुकीज वगैरह कोई नहीं है, छतें फुल हुई है, अंदर भी फुल है, ना मास्क है ना और कुछ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली हुई है मगर SOPs को ट्रांसपोर्टर का कहना है कि सैनिटाइजर और सवारियों को फासले पर बैठाना शुरू किया तो कमाएंगे क्या। कोई बिल्कुल ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई हाल ही नहीं है, ना इन्होंने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई बताया कि जी कोरोना या फलान या टिंगिंग जो भी है। मगर कोरोना के बारे में अभी हमारे साथ सवार पैसेंजर बैठते हैं, वो कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ। बाकी चीज़ें भी देखो, अड्डे वाले मालिकान जो है वो 100 रुपये अभी तक वही अड्डा ले रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने कोई अड्डा शड्डा कम नहीं किया। हमारी लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं तो यकीनन मेरे इमरान खान से यही ख्वाहिश है कि कुछ हमारे गरीबों के बारे में, पब्लिक के बारे में, कुछ इनके बारे में सोचें। शहरी कहते हैं पेट्रोल सस्ता हुआ तो किराए जूं के तू थे, अब जब महंगा हुआ तो 20% तक इजाफा कर दिया गया है। न सवार होने से पहले सैनिटाइजर दिया जा रहा है, अगर फासले पर बैठने का इसरार करें तो उतरने का कहा जाता है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा कर दिया। खित्ते में पायदार क़याम अमन की ख्वाहिश लिए करतारपुर राहदारी खोल दी गई। सिख यात्री अपनी मजहबी तकरीबात के साथ महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब में भी शरीक हैं। सिख यात्रियों का पहला 23 रुकनी ग्रुप दरबार पहुंच गया। कोरोना के पेश नजर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने करतारपुर खोलने के तमाम तर इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर रखे थे।
करतारपुर गुरुद्वारा में किए जाने वाले इंतजामात के तहत महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की मरकजी दुआया तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें सिख यात्रियों ने शिरकत की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्रियों ने मुश्किल तरीन हालात में करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी रवादारी दिखाई है और हमेशा हर मजहब के लिए अपना दिल कुशादा रखा है। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया था। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अद्वियात की कीमतों पर 4 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात की कीमतों से मुतल्लक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़ी मजबूत है। हमारा ड्रैप का अदारा अद्वियात साज कंपनियों के नीचे लगा हुआ है। ड्रैप अद्वियात की कीमतों को घुमाता रहता है। ड्रैप चाहता है तमाम कंपनियां उसके दरवाजे पर आकर बैठी रहें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अद्वियात की कीमतों के तयन में इतना वक्त क्यों लगता है। कीमतों का तयन तो एक ही दिन में ड्रैप को करना चाहिए। क्या टास्क फोर्स की सिफारिशात के बाद हुकूमत ने कीमतों पर फैसला किया? हुकूमत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मामला लेकर नहीं बैठ सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि टास्क फोर्स की सिफारिशात आ चुकी हैं। हुकूमत ने सिफारिशात पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। डीपीसी को कीमतों के तयन का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टास्क फोर्स का जवाज कानून में किसी जगह नहीं। डीपीसी ने कीमतों का तयन किया। हुकूमत ने डीपीसी के फैसले पर टास्क फोर्स बना दी। इस तरह तो टास्क फोर्स पे टास्क फोर्स बनती जाएंगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को अद्वियात की कीमतों पर 4 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई। अदालत ने बहरिया टाउन को जमाशुदा रकम के हुसूल की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने रकम मांगने के बजाय अदालती कमेटी के जरिए खर्च करने की इस्तदा करते हुए कहा कि साबिक सुप्रीम कोर्ट जज की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमेटी में सेक्रेटरी प्लानिंग, चीफ सेक्रेटरी सिंध को शामिल किया जाए। कमेटी में वफाक और सिंध के नामजद एक एक शहरी भी शामिल हों। तमाम रकम सिंध की तरक्की पर शफाफ अंदाज में खर्च की जाए। सिंध ने बहरिया टाउन की रकम को बजट में वसूलियों का हिस्सा बनाया है। सिंध हुकूमत का शुरू से मौकफ था, उसे रकम नहीं चाहिए। पैसा आना शुरू हुआ तो सिंध हुकूमत रकम मांगने आ गई। सिंध हुकूमत ने कमेटी में वफाकी नुमाइंदगान की शमूलियत पर एतराज कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि सिंध के तरक्याती कामों में वफाक की मदाखलत कबूल नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत के पास सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। सिंध हुकूमत बहरिया टाउन के पैसे तरक्याती कामों के बजाय गाड़ियां खरीदने पर लगाना चाहती है। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को दी गई 11,000 एकड़ जमीन वापस मांग ली। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ये इस्तदा पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की दरख्वास्त पर बाकायदा हुक्म जारी करेंगे। बहरिया टाउन की कोरोना की वजह से अदायगी मौखर करने की दरख्वास्त पर समाअत सितम्बर में होगी। सोशल मीडिया के मुताबिक बहरिया टाउन ने मजीद जमीन पर कब्जा कर लिया है। बहरिया टाउन को दी गई जमीन का सर्वे होगा ताकि हकायक सामने आ सकें। अपने हुक्मनामे में सर्वे ऑफ पाकिस्तान को भी हिदायत जारी करेंगे। अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज करते हुए कहा कि महफूज शुदा फैसला मुनासिब वक्त पर जारी किया जाएगा। सहरिश खान, सेश न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे मकबूजा वादी की। तो मकबूजा वादी में काबिज फोर्सेस का गैर इंसानी लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल में महसूर कोरोना मुतासिर कश्मीरियों की तादाद 7,000 तक पहुंच गई है। हिंदुत्व बिजारियों के सीनों में बहते मुस्लिम दुश्मनी के नाले वादी के सीने पर उबल रहे। भारतीय काबिज फौजियों के जुल्म सितम सहते मजलूम कश्मीरी कोरोना लॉकडाउन की भेंट चढ़ गए। मकबूजा वादी में कोरोना मरीजों की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। और अब खबरें शामिल करें मौसम की। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे और मरी और नथिया गली में यालाबारी से पर्वत महकने लगे। मानसून बारिशों ने मुल्क भर में अपना रंग जमा दिया है। फसलें महक उठी तो गर्मी से बदहाल सब्जियों ने भी ताजगी हासिल कर ली। शहर इक़्तिदार में प्री मानसून के बादलों ने खूब रंग जमाया। मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया, जिससे गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई, जिससे मलिका कोसार का हुस्न मजीद निखर गया।
लाहौर और गिरदनवाह में भी काली घटाएं छाई, कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब मौसम का राज बरकरार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की इंग्लैंड में कोविड-19 टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया। स्क्वाड में शामिल 20 खिलाड़ियों और 12 टीम ऑफिशियल्स के टेस्ट ईसीबी के मेडिकल पैनल ने लिए। पाकिस्तान से बरतानिया रवाना होने वाले स्क्वाड के अलावा बॉलिंग कोच वकार यूनिस की भी टेस्टिंग की गई। क्रिकेटर्स का इब्तदाई कोरोना टेस्ट वर्स्टर पहुंचते ही लिया गया, जिसके नतायज अगले 24 घंटों में आएंगे। दूसरा कोविड टेस्ट 5 दिन बाद लिया जाएगा। टीम 14 रोजा करंटीना के दौरान हल्की फुल्की प्रैक्टिस करेगी, जबकि होटल में क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ियों को दीगर खेलों की सहूलियात भी दी गई हैं, जिसमें गोल्फ, प्ले स्टेशन वगैरह शामिल हैं। क्रिकेटर्स को शिद्दत से नतीजे का इंतजार है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल का कहना है कि बगैर तमाशाइयों के क्रिकेट मैचेस बोरियत से भरपूर होंगे। ये ऐसे ही है जैसे डेफ क्रिकेट का मैच हो। बेहतर है कि बायोस्क्योर माहौल में 15 से 20% तमाशाइयों को ग्राउंड में बैठकर मैच देखने की इजाजत दी जाए। इस सीरीज में पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। क्राउड के बगैर मैच खेलना मुझे बिल्कुल वो एक बोरियत सी क्रिकेट नहीं होती, जिसको मतलब कि लाइक अगर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही हो तो क्राउड आता ही नहीं है और सारे स्टार खेल रहे हो तो उनको पूछे उनसे कि कितना मजा आता है। बिल्कुल नहीं आता। क्राउड सपोर्ट करने के लिए जरूर होना चाहिए। थोड़ा अगर चले आपके स्टेडियम में 10,000 बंदे की गुंजाइश है तो आप 1000 का बंदा तो एटलीस्ट उसको बुलाएं, ताकि कुछ तो प्लेयर को मजा है देखने खेलने का। और अगर फुटबॉल की एशियन बॉडी ने लॉकडाउन का शिकार शायकीन के लिए जादुई लम्हात की सीरीज का सिलसिला शुरू कर रखा है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के इल्जाम में ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ईरानी हुकूमत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी में मदद के लिए इंटरपोल को खत भी लिख दिया। बगदाद में ड्रोन हमले के नतीजे में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम आयद कर दिया। ईरानी हुकूमत ने अमरीकी सदर और साजिश में शरीक अफराद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली। ईरानी प्रोसिक्यूटर अली कासिम के मुताबिक ईरानी हुकूमत का मानना है जनवरी के दौरान बगदाद में अमरीकी दहशतगर्दी के नतीजे में ईरानी जनरल की शहादत हुई। अटार्नी जनरल का मजीद कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने के बाद भी उनका पीछा किया जाए और जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके सजा दी जाए। माहिरीन कहते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं, लेकिन इल्जामात से अमरीका ईरान कशीदगी की शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इसकी वजह अमरीका के ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत से आलमी ताकतों को दस्तबरदार कराने के लिए दबाव है। दूसरी तरफ फ्रांस में इंटरपोल ऑफिस ने इस पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी फौज ने बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब 3 जनवरी के दौरान ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया था, जिसके जवाब में ईरानी फोर्सेस ने हमले करके इराक में अमरीकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया था। अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। सूबा हलमंद में बम धमाके में 6 शहरी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान एक मरतबा फिर लहू लहू हो गया है। सूबा हलमंद के जिला वाशेर में सड़क किनारे बम धमाके में 6 शहरी जान से चले गए, जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। और ड्रोन्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों में आम हो गया। चीन में ड्रोन शो का एहतमाम किया गया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर LED लाइट से मुज़य्यन 800 रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स को एक साथ आसमान पर उड़ाया गया। जुगनों की तरह आसमान पर रोशनी बखेरते ड्रोन्स की शानदार परफॉर्मेंस देखने वाले हैरान रह गए।